بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں غیر اسلامی ثقافتوں کی پیروی جائز ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال ہے کہ مسلمانوں میں جہاد صرف جنگ کا نام ہے؟ جواب نہیں۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، اور یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کی اچھائی کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں آزادی کا تصور موجود ہے؟ جواب جی ہاں۔ اسلام میں آزادی کا تصور موجود ہے، لیکن اس کی حدود شریعت کے مطابق ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں عورت کو مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں؟ جواب جی ہاں۔ اسلام میں عورت اور مرد کو برابر حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کے فرائض مختلف ہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کو اپنے دین پر مجبور کرنا جائز ہے؟ جواب جی نہیں۔ اسلام میں کسی کو اپنے دین پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے عورت کی تھوڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب عدم ہارمونی توازن کی۔ سوال ہے جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب جس گھر میں جادو ٹونا ہوا ہو اس گھر میں مختلف نشانیاں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر خون کے چھینٹے پڑنا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہنا۔ سوال ہے کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب تہجد کے وقت۔ سوال ہے کہ اسلام میں تعلیم کا تصور صرف مردوں کے لیے جائز ہے؟ جواب جی نہیں۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تعلیم کا حصول فرض ہے۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کس نبی کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کا لقب ذبیح اللہ تھا؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو بصارت سے محروم ہو گئے تھے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے ایک مردہ پرندے کو زندہ کیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا تھا اور اس کے بدلے انہیں سخت سزائیں دی گئیں؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی نے فرشتوں کے سامنے اپنی نیت صاف کرنے کے لیے قسمیں کھائیں؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچ ثابت ہوئی؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ پہلے نبی کون تھے جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں ایک بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا جو ان کی قوم پر آنے والا تھا۔ سوال ہے کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی نے بادشاہ نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے دو نبی تھے جنہوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا جو پہاڑوں کو بھی متاثر کرتی تھی؟
जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। सवाल है वो कौन से नबी थे जिन्हें परिंदों और जानवरों की बोली समझने की सलाहियत अता की गई थी? जवाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सवाल है किस नबी के असा से समुंदर में रास्ता बन गया था? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। सवाल है किस नबी के सब्र को कुरान में मिसाल के तौर पर पेश किया गया है? जवाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। सवाल है क्या इस्लाम मुखालफिन से ताल्लुकात रखने की इजाज़त देता है? जवाब अमन और इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी साजिश में हिस्सा ना लेना। सवाल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुश्किलात का सामना किसकी तरफ से था? जवाब उस वक्त के बाद हुक्मरान और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से। सवाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कौन से चैलेंजेस थे? जवाब फ़िरऔन और उसकी कौम की मुखालफत। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने कौन से चैलेंजेस थे? जवाब उनकी अपनी कौम जो ईमान ना लाई। सवाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन चैलेंजेस का सामना था? जवाब उनके अपने भाइयों की तरफ से हसद का सामना था। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कौन से चैलेंजेस थे? जवाब उनके वालिद और उनकी कौम जो बुतों की पूजा करते थे। सवाल है शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद क्यों किया? जवाब तकब्बुर और हसद की वजह से। सवाल है शैतान इंसानों को क्या नुकसान पहुंचाता है? जवाब गुनाहों की तरफ उकसाता है और गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। सवाल है शैतान से हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? जवाब अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। सवाल है शैतान इंसान के किस अज़ा पर वसवसों से डालता है? जवाब दिल और दिमाग पर। सवाल है शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? जवाब आयतुल कुर्सी पढ़ना। सवाल है शैतान का असल नाम क्या है? जवाब इब्लीस। सवाल है इब्लीस को किस चीज़ से पैदा किया गया? जवाब आग से। सवाल है क्या इब्लीस फरिश्तों में से था? जवाब जी नहीं, वो जिन्नात में से था। सवाल है इब्लीस किस वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हुआ? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करने की वजह से। सवाल है इब्लीस ने किस बुनियाद पर सजदा करने से इनकार किया? जवाब उसने कहा कि वो आग से पैदा हुआ है और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से, इसलिए वो आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। सवाल है इब्लीस ने किस चीज़ का मुजाहिरा किया जिसकी वजह से वो रांदा दरगाह हुआ? जवाब तकब्बुर का। सवाल है क्या इब्लीस को कोई दूसरा नाम भी दिया गया? जी हाँ, इब्लीस की सरकशी की वजह से उसे शैतान कहा जाता है। सवाल है इब्लीस को ज़मीन पर क्यों उतारा गया? जवाब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर उसे जन्नत से निकाला गया। सवाल है इब्लीस ने अल्लाह से क्या मोहलत मांगी थी? जवाब क़यामत तक ज़िंदा रहने की। सवाल है अल्लाह ने इब्लीस की मोहलत की दरख्वास्त को क्यों कबूल किया? जवाब ताकि बनी आदम के इम्तहान के लिए उसको एक मुद्दत तक की मोहलत दी जाए। सवाल है शैतान का बुनियादी काम क्या है? जवाब इंसान को गुमराह करना और बहकाना। सवाल है शैतान किस तरह इंसान को गुमराह करता है? जवाब दिल में वसवसा डालकर। सवाल है क्या शैतान इंसान पर जबरन गुनाह करवा सकता है? जवाब नहीं, वो सिर्फ वसवसे डाल सकता है, इंसान को मजबूर नहीं कर सकता। सवाल है कुरान में शैतान को इंसान का क्या बताया गया है? जवाब खुला दुश्मन। सवाल है
शैतान किस वक्त इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है? जवाब, एक हदीस के मुताबिक जब इंसान के दिल में वसवसे डालता है। सवाल है, शैतान इंसान को किन चीज़ों का हुक्म देता है? जवाब, बेहयाई और बुराई का। सवाल है, क्या शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं? जवाब, जी हाँ, कुरान के मुताबिक इंसानों और जिन्नों में से भी शैतान होते हैं। सवाल है, शैतान इंसान को किस चीज़ के वादे देता है? जवाब, धोखे के वादे। सवाल है, शैतान कब इंसान से मायूस होकर भाग जाता है? जवाब, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है। सवाल है, शैतान के शर से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? जवाब, अल्लाह की बंदगी करना और उस पर भरोसा रखना। सवाल है कि अल्लाह के नेक बंदों पर शैतान का कोई इख्तियार है? जवाब, जी नहीं, अल्लाह के सच्चे बंदों पर शैतान का कोई इख्तियार नहीं होता। सवाल है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ने से शैतान शरीक नहीं होता? जवाब, बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल है, घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान घर से दाखिल होने से रोका जा सकता है? जवाब, बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल है, इब्लीस को क़यामत के दिन क्या सज़ा मिलेगी? जवाब, जहन्नम में हमेशा के लिए रहना। सवाल है, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों से क्या कहेगा? जवाब, वो इनसे बड़ी असदमा हो जाएगा और कहेगा कि तुम पर लानत हो। सवाल है, शैतान क़यामत के दिन जहन्नमियों को क्या जवाब देगा? वो कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने झूठा। सवाल है, क्या शैतान जहन्नम में अपने पैरोकारों की मदद कर सकेगा? जवाब, नहीं, वो इनसे बेजार हो जाएगा। सवाल है, शैतान की गुमराही का रास्ता इख्तियार करने वालों का अंजाम क्या होगा? जवाब, जहन्नम। सवाल है, क्या हर इंसान के साथ एक शैतान होता है? जवाब, जी हाँ, एक शैतान और एक फरिश्ता हर इंसान के साथ होता है जो इसे वसवसे और नेक कामों की तरफ तरगीब देते हैं। सवाल है, शैतान कब सबसे ज़्यादा खुश होता है? जवाब, जब वो मियाँ बीवी में झगड़ा करवाता है। सवाल है, बच्चा पैदा होने पर शैतान क्या करता है? जवाब, उसे छूता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छूने के। सवाल है, शैतान के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल क्या है? जवाब, कुरान पाक की तिलावत। सवाल है, शैतान इंसान के दिल पर कब कब्जा कर लेता है? जवाब, जब इंसान गाफिल होता है और अल्लाह का जिक्र नहीं करता। सवाल है, शैतान को किसने शिकस्त दी थी जब वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आया था? जवाब, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, क्या शैतान इल्म के रास्ते में भी रुकावटें डालता है? जवाब, जी हाँ। सवाल है, शैतान का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा आया है? 88 मरतबा। सवाल है, क्या शैतान सिर्फ एक है या इसका कोई ग्रोह भी है? जवाब, इसका एक पूरा ग्रोह है जिसे शयातीन कहा जाता है। सवाल है, शैतान की एक खसूसियत क्या है जिससे वो इंसानों को वर्गलाता है? जवाब, चिकनी चुपड़ी और धोखा देने वाली बातें करना। सवाल है, क्या शैतान सिर्फ गुमराह करने के लिए पैदा किया गया है? जवाब, कुरान के मुताबिक इसका वजूद इंसानों की आजमाइशें और इख्तियार की दलील है। सवाल है, क्या शैतान के पैरोकारों में जन्नात भी शामिल हैं? जवाब, जी हाँ। सवाल है, क्या शैतान के वसवसों की वजह से इंसान गुनाहों पर मजबूर हो जाता है? जवाब, जी नहीं, वसवसा सिर्फ तरगीब है, गुनाह का इख्तियार इंसान के पास होता है। सवाल है, शैतान के वसवसे किन चीज़ों के बारे में होते हैं?
जवाब बुराई, बेहयाई और अल्लाह पर झूठ बोलना। सवाल है, सब्र करने वाली औरत के जिस्म में क्या खास बात होती है? जवाब सब्र करने वाली औरत के जिस्म में बर्दाश्त और दिल में अल्लाह की तरफ से सुकून होता है। सवाल है, कुरान के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब वो किताब जो बहुत पढ़ी जाती है। सवाल है, कुरान किस रात नाजिल हुआ? जवाब लैलतुल क़द्र में। सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को किन पर नाजिल किया? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब 114 सूरतें। सवाल है, कुरान पाक के कुल कितने पारे हैं? जवाब 30 पारे। सवाल है, कुरान पाक के कितने नाम हैं जो कुरान में ही जिक्र किए गए हैं? जवाब अल फुरकान, अल किताब, अल ज़िक्र, अल नूर और अल हुदा। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है? जवाब कुरान मजीद की। सवाल है, कुरान पाक के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? जवाब खातिमुन नबिय्यीन। सवाल है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की आजमाइश हैं? जवाब माल, सेहत और औलाद। सवाल है, इस्लाम में मोअज़्ज़ात की दो इक़साम क्या हैं? जवाब करामत और मोअज़्ज़ात। सवाल है, करामत किसको दी जाती है? जवाब अल्लाह ताला की तरफ से औलिया कराम को दी जाती है। सवाल है, मोअज़्ज़ात किसको दिए जाते हैं? जवाब सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दिए जाते हैं। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा क्या है? जवाब कुरान मजीद। सवाल है, मोअज़्ज़ात के मायने क्या हैं? जवाब वो गैर मामूली वाक़यात जो अल्लाह की मदद से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हाथों ज़ाहिर होते हैं। सवाल है, मोअज़्ज़ात क्यों दिए जाते हैं? जवाब ताकि मखलूक की हदायत हो और हक़ पर कायम रहें। सवाल है, कुरान में किन दीगर अंबिया के मोअज़्ज़ात ज़िक्र हैं? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, आम खाने के फ़ौरन बाद क्या पीने से मौत वाक़या हो सकती है? जवाब आम खाने के फ़ौरन बाद कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पीने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये हाजमे के मसाइल पैदा कर सकता है और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन इससे मौत वाक़या होना एक मुबालगा राय है। सवाल है, जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना किस चीज़ की अलामत है? जवाब जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना बुनियादी तौर पर जनियाती अवामिल, तनाव, ग़िज़ाई कमी, थायराइड मसाइल या तंबाकू नोशी की अलामत हो सकता है। सवाल है, किस नबी ने अपने वालिद को बुत परस्ती से मना किया था? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस नबी ने पहाड़ पर जाकर अल्लाह के दीदार की इल्तिजा की थी? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनकी कौम ने उन्हें बहुत ज़्यादा अज़ियतें पहुँचाई? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह से दुआ की थी और उनकी दुआएं कबूल हो गई थीं? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, किस नबी के मोअज़्ज़ात को कुरान में बयान किया गया है? जवाब तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात को कुरान में बयान किया गया है। सवाल है, किस नबी की बीवी ने उसका साथ नहीं दिया था? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने।
सवाल है वो कौन से नबी थे जिन्हें अल्लाह ने आसमान पर जिंदा उठा लिया था? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है जो आजकल सबको दरपेश है? जवाब फ़िरका वारियत। सवाल है क्या इस्लाम में फ़िरका वारियत जायज़ है? जवाब जी नहीं। सवाल है कि आज के मुसलमान अपने दीन पर अमल करने में कामयाब हो रहे हैं? जवाब बाज़ जगहों पर मुसलमान अपने दीन पर अमल करने में कामयाब हो रहे हैं जबकि बाज़ जगहों पर मुसलमानों को मुश्किलात का सामना है। सवाल है कि इस्लाम में दहशतगर्दी जायज़ है? जवाब जी नहीं। सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन का एहतराम किया जाता है? जवाब जी हाँ। सवाल है कि आज के मुसलमानों को अपने दीन पर अमल करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है? जवाब जी हाँ। सवाल है क्या इस्लाम में सूदी कारोबार जायज़ है? जवाब इस्लाम में सूदी कारोबार सख्ती से मना है। इस्लाम में सबसे बड़ा दुश्मन किसको करार दिया गया है? जवाब शैतान को। सवाल है कुरान मजीद में कफ़ार के बारे में क्या इरशाद है? जवाब कुरान में कफ़ार को वाज़ेह तौर पर दुश्मन करार दिया गया है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। सवाल है मुनाफ़िकीन कौन होते हैं? जवाब वो लोग जो बज़ाहिर खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं लेकिन अंदर से इस्लाम के दुश्मन होते हैं। सवाल है कुरान में मुनाफ़िकीन के बारे में क्या वईदें हैं? जवाब कुरान में इन्हें काफिरों से भी बदतर करार दिया गया है और इनके लिए सख्त अजाब की वईद है। सवाल है वो कौन से लोग हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं? जवाब अहले किताब में से यहूद व नसारा, मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन। सवाल है हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों के अहम दुश्मन कौन थे? जवाब मक्का के कुरैश जो मुसलमानों पर जुल्म करते थे, यहूद मदीना जो माहिदा तोड़ते थे और मुनाफ़िकीन। सवाल है जंग बदर में मुसलमानों के खिलाफ सबसे अहम दुश्मन कौन था? जवाब मक्का के मुशरिकीन का लश्कर जिसकी क़यादत अबू जहल कर रहा था। सवाल है जंग ओहद में मुसलमानों का अहम दुश्मन कौन था? जवाब मक्का के मुशरिकीन जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। सवाल है किस यहूदी कबीले ने मुसलमानों से गद्दारी की थी? बनु करीज़ा, बनु नज़ीर और बनु कनीका ने। सवाल है वो कौन सा वाक़या है जिसमें मुनाफ़िकीन ने मुसलमानों को जंग से पहले छोड़ दिया था? जवाब जंग ओहद में अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ मुसलमानों का साथ छोड़ दिया था। सवाल है जदीद दौर में मुसलमानों को किन चैलेंजेस का सामना है? जवाब मुख्तलिफ मनफी ख्यालात और तर्ज़ ज़िंदगी जो इस्लामिक तलीमात से मुतसादिम हैं। सवाल है इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ कैसे पैदा होती हैं? जवाब मालूमात की कमी, मनफी मीडिया कवरेज और बाज़ औक़ात मुसलमानों के अपने अमाल की वजह से। सवाल है इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? जवाब दुरुस्त मालूमात फ़राहम करके, मुकालमा करके और अपने अमाल से इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश करके। सवाल है मुसलमानों के अंदरूनी चैलेंजेस कौन से हैं? जवाब आपस के इख्तलाफात, फ़िरकावारियत और इखलाकी कमज़ोरियाँ। सवाल है इन अंदरूनी चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? जवाब इत्तेहाद, बर्दाश्त, इल्म और अपनी इस्लाह की कोशिश करके। सवाल है इंसान का अपना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जवाब अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाना। सवाल है नफ्स को कैसे काबू किया जा सकता है?
जवाब अल्लाह का जिक्र, दुआ और नेक अमाल के ज़रिए। सवाल है तकब्बुर और गुरूर क्या है? जवाब ये वो रवैये हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब होने से रोकते हैं। सवाल है हसद और बुग़्ज़ क्या है? जवाब ये वो बातनी बीमारियां हैं जो ईमान को कमज़ोर करती हैं। सवाल है इन अंदरूनी बीमारियों का इलाज क्या है? जवाब दुआ, सब्र और अल्लाह से इस्तग़फ़ार। सवाल है मुसलमानों में आपस के इख्तिलाफ़ात का क्या सबब होता है? जवाब नफ़सानी ख्वाहिशात, दुनियावी मुफावदात और फितना फ़साद। सवाल है मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है? जवाब एक दूसरे के लिए मोहब्बत, रवादारी और इस्लामी भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देकर। सवाल है कुरान में मुसलमानों को क्या हुक्म दिया गया है? जवाब कुरान में मुसलमानों को मुत्तहिद रहने और आपस में झगड़ा न करने का हुक्म दिया गया है। सवाल है हदीस में आपस के इख्तिलाफ़ात के बारे में क्या वईद है? जवाब आपस में बुग़्ज़ और दुश्मनी रखने वालों के लिए सख्त वईद है। सवाल है मुसलमानों को आपस में कैसे सुलह करनी चाहिए? जवाब अल्लाह के नाम पर सुलह, माफ़ी और भाईचारे के जज्बे के साथ। सवाल है मुश्किलात के ख़िलाफ़ मदद के लिए कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? जवाब या अल्लाह मुश्किलात से बचाओ और इन पर गालिब आने की ताकत दे। सवाल है ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कैसे दुआ मांगनी चाहिए? जवाब ऐ अल्लाह इन ज़ालिमों का शर इन्हीं पर लौटा दे। सवाल है मुश्किलात से हिफाजत के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? जवाब मुश्किलात से हिफाजत के लिए सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। मुश्किलात के शर से हिफाजत के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब सूरत फलक और सूरत नास। सवाल है जहाद का मतलब क्या है? जवाब अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना। सवाल है जहाद में चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करना चाहिए? जवाब बहादुरी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करके। सवाल है क्या औरतों पर अमली जद्दोजहद वाजिब है? जवाब नहीं, मगर ख़वातीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद कर सकती हैं। सवाल है इस्लाम में जंग के असूल क्या हैं? जवाब जंग में सिर्फ अस्करी अहदाफ पर हमला करना, औरतों, बच्चों और गैर मुसल्लह अफराद को नुकसान ना पहुँचाना। सवाल है इस्लाम के मुखालफिन से कैसा बर्ताव करना चाहिए? जवाब कुरान और हदीस की तलीमात के मुताबिक। सवाल है मुखालफिन से बातचीत कैसी होनी चाहिए? जवाब हिकमत और दलील के साथ बातचीत होनी चाहिए। सवाल है इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को कैसे दूर करना चाहिए? जवाब तहकीक, दलील और गुफ्तगू के ज़रिए। सवाल है मुखालफिन को दावत इस्लाम कैसे दी जा सकती है? जवाब नरमी, हिकमत और दलील के ज़रिए।